Everyone. In last lectures, we have discussed stability of floating bodies, concept of meta center, and when the body is stable, unstable, depending on the position of meta center. Equilibrium will be stable if Hg is less than Hm, otherwise not. And these are the some formulas which will be used in questions. First question is a cone whose vertical angle is 60 degree floats in water with its axis vertical and vertex downward. Show that meta center lies in the plane of flotation and that is equilibrium will be stable provided its specific gravity is greater than 27/64. क्या दे रखा है हमें एक कोन जिसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, एक्सिस वर्टिकल है और वर्टेक्स उसका डाउनवर्ड है. शो क्या करना है हमें कि मेटा सेंटर लाई कर रहा है इन प्लेन ऑफ फ्लोटेशन एंड दैट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा प्रोवाइडेड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 27/64. तो इसमें हमने क्या सपोज किया, दिस इज अ कोन, h is the height of the cone with semi vertical angle is 30 degree and let the surface of flotation is a circle of radius r and h dash length h dash with a length which is immersed in the liquid. H is the total length of this cone and h dash is the length which is immersed in the liquid and r is the radius of flotation. R is the radius of surface of flotation. Means this radius is r here. So r is equal to h tan 30 means r by h. यहाँ से ये r by h क्या आ जाएगा आपके पास tan 30. V is the volume of cone immersed, which is equal to 1/3 pi r square h dash, because h dash is the height up to which cone is immersed in the liquid. Now putting the value of here r की वैल्यू क्या है h tan 30, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी हमने मींस h स्क्वायर tan स्क्वायर 30, तो वैल्यू आ गई 1/9 pi h dash क्यूब. आंसर a k square is the moment of inertia of the plane of flotation about diameter. This is the formula of moment of inertia of plane of flotation, which is equal to area into radius of gyration square, which is equal to area of circle pi r square into radius of gyration is r square by 4. इन केस ऑफ सर्कल के केस में हमने आपको बताया था सर्कुलर एरिया है अगर रेडियस a का, तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या होगी a square by 4 और इन दिस केस r square by 4. So just putting the value of r here, we get ak square means which is equal to pi h dash raised to power 4 by 36. Now from equation 2 and 3, hm फॉर्मूला क्या है, hm is equal to ak square by v. ak square हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v कैलकुलेट कर चुके हैं, तो hm निकल जाएगा. h क्या है, h is the center of buoyancy means center of gravity of the body immersed. oh is equal to 3/4 h dash. hm ये आपका hm क्या आ रहा है, h dash by 4 आ रहा है. oh क्या है 3/4 h dash. so oh plus hm किसके इक्वल हो गया, om which is equal to h dash. It shows meta center lies on the plane of flotation. Now equilibrium is stable condition क्या है, when hg is less than hm और hg को हम क्या लिख सकते हैं, og minus oh which is less than hm. जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी og और oh की, तो हमारे पास क्या आ गया 3h is less than 4h dash. Now for floating, weight of the cone is equal to weight of the water displaced. तो cone का weight is equal to weight of water displaced means volume 1/3 pi h dash cube tan square 30 into rho. ठीक है. Now this is equal to, just solve करके आ गया ये हमारे पास, rho and rho dash are the densities of the cone and the water. The equilibrium is stable if, यहाँ से इक्वेशन 4 से हमने कंडीशन निकाली, if h dash by h is greater than 3/4. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से इक्वेशन 5 का यूज करते हुए ये हमारा क्या बन गया, रो बाय रो डैश इज ग्रेटर देन दिस. और रो बाय रो डैश ये क्या बन गया, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 27/64. Next question is, if the floating solid be a cylinder
with its axis vertical, the ratio of whose specific gravity to that of fluid is sigma. Prove that equilibrium will be stable if ratio of radius of base to the height be greater than this value. इस केस में आपको एक सिलेंडर दे रखा है, एक्सिस वर्टिकल है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी टू दैट ऑफ फ्लूइड इज सिग्मा. प्रूव करना है इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. Let A be the radius of the base, H be the height of the cylinder, and H dash is the height, is the length which is immersed in the liquid. Let V be the volume of the cylinder immersed, which is equal to pi A square H dash. Now plane of flotation is a circle. You can see of radius A. So moment of inertia of a plane of flotation is AK square. A means area और K square की वैल्यू क्या होती है A square by 4 in case of circle. तो A के स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया पाई A raised to power 4 by 4. HM निकाल लिया. हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करना है आपने. HM आ गया हमारे पास A के स्क्वायर बाई B. A के स्क्वायर भी निकाल चुके हैं हम, B भी निकाल चुके हैं. Also OH dash, sorry OH is H dash by 2, where H is the center of buoyancy and OG is H by 2. You know in case of cylinder OG कितना होता है आपके पास H by 2 और OH कितना हो जाएगा H dash by 2, क्योंकि H जो है दिस इज अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट किसके लिए जो इमर्स्ड है लिक्विड में उतने पोर्शन के लिए. ठीक है, तो H G क्या आ गया OG माइनस OH. OG की वैल्यू पता है, OH की वैल्यू पता है, रखी. स्टेबिलिटी की कंडीशन लगाई, इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा व्हेन HM इज ग्रेटर देन HG. HM की वैल्यू पता है, HG हम कैलकुलेट कर चुके हैं. जस्ट यहाँ से क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, रिलेशन आ गया, कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की. नाउ इन इक्विलिब्रियम वेट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड या वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. तो सिलेंडर का वेट एक तरफ, दूसरी तरफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. रो वन एंड रो टू क्या आएगी, रो वन डेंसिटी होगी सिलेंडर की, रो टू डेंसिटी होगी वाटर डिस्प्लेस्ड की. तो रो वन बाई रो टू हमने कैलकुलेट किया और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दे रखी है हमें, सिग्मा दे रखी है. तो मीन सिग्मा हमारे पास क्या आ गया H डैश बाय H. तो हमारे पास इक्वेशन 1 से इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, हमने जो H डैश बाय H है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा के टर्म्स में पुट कर दी. मींस दैट इफ A by H is greater than this value. थर्ड एग्जांपल सेम वैसे ही जैसे सेकंड था. A homogeneous circular cylinder of specific gravity S floats in water with its axis vertical. If radius of cylinder is 2/3 of its height, show that equilibrium cannot be stable if S lies between 1/3 and 2/3. यहाँ इस केस में जो सिलेंडर की रेडियस दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 2/3 ऑफ द हाइट और इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल नहीं होगा इफ S जो है वो किसके बीच में लाई करेगा 1/3 और 2/3 के बीच में लाई करेगा. मीन्स अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1/3 और 2/3 के बीच में लाई करेगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा. Let A be the radius of the base of the cylinder and according to given condition it is equal to 2/3 H, where H is the height of the cylinder. Now suppose H dash is the length of axis of which is immersed in the liquid. Now volume of the cylinder immersed, you can calculate. Plane of flotation is a circle, you can see of radius A. Now moment of inertia फॉर्मूला क्या है ए के स्क्वायर, सर्कल के केस में एरिया पाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर बाय 4. HM का फॉर्मूला लगाया ए के स्क्वायर बाय V, दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट कर दी. इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, HM इज ग्रेटर देन HG और HG क्या होता है OG माइनस OH. OG भी H बाय 2 और OH क्या है H डैश बाय 2 बिकॉज G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो OG इन केस ऑफ सिलेंडर क्या होता है उसके मिड पॉइंट पे लाई करते हैं, जितनी लेंथ हाइट होती है तो H बाई 2. ऐसी OH, H इज अगेन द आपका क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सिलेंडर. जितना सिलेंडर इमर्स्ड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस और कितनी हाइट कितनी लेंथ उसमें इमर्स्ड है H डैश, तो क्या हो जाएगा उसका हाफ, उसका सेंटर H डैश बाई 2. तो यहाँ से कंडीशन आ गई ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. फिर हमने इक्विलिब्रियम में कंडीशन लगाई वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. यहाँ से हमने H डैश में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ रो एंड रो डैश. ये जस्ट वैल्यू H और H डैश के इन टर्म्स ऑफ रो एंड रो डैश हमने पुट कर दी इक्वेशन 3 में, ताकि जो हमारा रिजल्ट आए वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में आ सके. ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ. जस्ट इसको सोल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. अब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या मतलब हुआ, आइदर S इज ग्रेटर देन 1/3 या फिर S इज ग्रेटर देन 2/3.
तब क्या होगा, स्टेबल मीन्स सॉरी, इनका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मीन्स या तो दोनों टर्म्स आपके नेगेटिव होंगे या फिर दोनों ही टर्म आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी के लिए अगर पॉजिटिव है तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे आपके ग्रेटर देन 1/3 एंड 2/3, या फिर दोनों ही टर्म्स नेगेटिव होंगी मीन्स ये टर्म भी आपकी नेगेटिव होगी और ये टर्म भी आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मीन्स क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल कब नहीं होगा, अगर एक पॉजिटिव हो मीन्स अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो, ये वाली कंडीशन मीन्स इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 ना हो। और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब नहीं होगा, जब एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव से हम क्या कहते हैं, वैल्यू जो है 1/3 और 2/3 के बीच में लाई कर रही है। अगर वैल्यू 1/3 और 2/3 के बीच में लाई कर रही है तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो गई उसके लिए, और ये टर्म उसके लिए क्या हो गई, नेगेटिव मीन्स प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस देन 0। सो इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। यू कैन ट्राई रेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस